Hello everyone and welcome to the Daily News Analysis. So we have brought this analysis from LawSikho, and today we'll be analyzing the important articles and editorials from the Hindu and the Indian Express dated 17th June 2020. So let's see that what articles are important from our exam point of view today. So the first article is of gods and governments. So this article again talks about the COVID-19 as a force majeure, if it is a force majeure or not, and what else can be considered as a force majeure. And we'll be discussing as to what force majeure is when we get to this article. So the next article is for better conditions of work. So here we'll be talking about the better employment opportunities for the migrant workers, as nowadays we have seen a lot of turmoil going on in the lives of the migrant workers in India. Then the third article is in defense of MPLADS. So MPLADS actually, like MPLADS is also, it is actually one of the schemes given to the members of parliament. So we'll be discussing about them. And then the fourth article is rural India, the new viral flashpoint. So here again, we'll be talking about the rural India and about the spread of COVID-19, the potential spread of COVID-19 in the rural India. And finally, we'll be talking about this article titled as Language of Justice. This is from the Indian Express, and it talks about the official language of the courts in various states in India, specifically keeping Haryana in mind. So let's get started for the day. And the first article talks about force majeure and COVID-19. So first of all, we need to understand that what do we actually mean by force majeure. Now, the name itself is suggesting the term force, which puts into our mind clearly that something that is beyond and that is without our wish, that is something that we do not want to do voluntarily, but something that is forced upon us. तो force majeure का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी situation जिसकी वजह से हम जो करना चाहते थे एग्जैक्टली वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसके कुछ भी उसके अलावा जो हम नहीं एक्चुअली हमने सोचा था या हम नहीं करना चाहते थे वो हमें करना पड़ रहा है ड्यू टू ऑफ दिस मेजर फोर्स, समथिंग दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, सो फोर्सिबल कि वी आर नॉट एबल टू control the circumstances and perform or do things the way we had already planned to. तो अभी क्या हुआ है कि जब से हमारा कोविड-19 पैंडेमिक का इशू पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ है, तो उसको और उससे जो और इम्प्लीकेशंस अराइज हो रही हैं उसको कई जगहों पे फोर्स मेजॉर माना जा रहा है. मतलब ये माना जा रहा है कि इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर नेशन, जिसको सबसे ज्यादा अगर हम मानेंगे हेल्थ और इकोनॉमी, और अगर इस आज का जो पूरा है वो बेसिकली इकोनॉमी की बात ज्यादा करता है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है उसकी बात ज्यादा करता है. तो इसमें फोर्स मेजॉर का मतलब है कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो इतने हार्श हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है या बहुत सारे इकोनॉमिक डीलिंग जिनको हम कह सकते हैं, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी या इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स थे, वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हो गए हैं. सो उसकी वजह से जो आउटकम चीजों का निकल के आना चाहिए था वो नहीं निकल पाया है. तो दैट इज व्हाई वी आर ट्रीटिंग इट एज अ फोर्स मेजर. बट दिस आर्टिकल अगेन टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट क्या कोविड-19 खुद में इज इट इन इटसेल्फ अ फोर्स मेजर और इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. क्या ये हमें बहुत इट इज वेरी इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझे कि कोविड-19 खुद से एक फोर्स मेजर है भी या नहीं, because the impact of COVID-19 has not been synchronous in all the spheres. हर जगह पे इसका इम्पैक्ट एकदम इक्वल नहीं पड़ा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ा है और इकोनॉमी पे अलग तरीके से पड़ा है. एजुकेशन पे कह सकते हैं अलग तरीके से पड़ा हो सकता है, और दूसरी जगह पे अगर हम बोले लाइवलीहुड पे अलग तरीके से हो सकता है. सो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 एकदम जिसको हम कहते हैं सिमेट्री के साथ उसका इम्पैक्ट हर सेक्टर में देखने को मिला. तो इसीलिए शायद ये राइटियस नहीं होगा, सही नहीं होगा कि हम कोविड-19 को पर से, मतलब पूरे कोविड-19 को एज सच फोर्स मेजर माने, और इसीलिए हमें इसको इंट्रिकेटली और अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए सब्जेक्टिवली हमें इसको एनालाइज करना चाहिए. तो अब इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में ही, अभी बस वेरी रिसेंट दिस केसेस, सो स्टैंडर्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स 2020, तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया दैट लॉकडाउन, प्लीज माइंड द वर्ड लॉकडाउन, has made it impossible to meet economic obligations resulting in the invocation of force majeure clause. तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, see the language is what is everything that we should be paying attention to.
सो द टर्म लॉकडाउन इन इटसेल्फ हैज नॉट बीन यूज्ड. सिर्फ लॉकडाउन अकेला यूज नहीं हुआ है. लॉकडाउन का जो एक इम्पैक्ट है, एक इम्प्लीकेशन है, सॉरी, कोविड-19 का जो एक इम्प्लीकेशन है which is लॉकडाउन, बिकॉज इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं. हेल्थ सेक्टर में अलग इम्प्लीकेशन है, एंड अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर में देखें तो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन इस टाइम पे लॉकडाउन ही हो सकता है, जिसने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हॉल्ट पे लगाया हुआ है. सो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन हैज मेड इट इम्पॉसिबल. सो कोविड-19 के अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं, उनमें से जो एक लॉकडाउन है उसको हम फोर्स मेजॉर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. सो नाउ वी कैन इजिली कंक्लूड बाय दिस कि COVID-19 in itself cannot be treated as a force majeure, but the various implications of it can subjectively analyzed, and one or few of them can be treated as a force majeure. तो इस केस में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन ने ये इम्पॉसिबल कर दिया है कि बहुत सारे जो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस हैं, इकोनॉमिक ड्यूटीज जो पार्टीज के ऊपर थे, लोगों के ऊपर थे, वो उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका एक क्लॉज होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉज होता है उसमें एक फोर्स मेजॉर का जो कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स फोर्स मेजॉर का क्लॉज होता है कि अगर कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है, अराइज होती है इन द कमिंग फ्यूचर, जब जो सिचुएशंस है या सर्कमस्टेंसेस है बियॉन्ड कंट्रोल होंगे, सो वी विल बी इन्वोकिंग, वी विल ब्रिंग इनटू एक्शन द क्लॉज ऑफ फोर्स मेजॉर, और तब हम इस तरीके से जो भी उसमें प्रिस्क्राइब्ड मैनर रहेगा उस तरीके से अपना जो डिस्प्यूट होगा या जो भी हमारा ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसको उसी हिसाब से हम रिजॉल्व करेंगे. सो इसीलिए अब हम फोर्स मेजॉर को हम समझ चुके हैं, एंड वी कैन आल्सो सी इट इन डेफिनेशन दैट इट इज एन इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी. Definitely, because force majeure, or it should be also such major force, इतना उसका ज्यादा उसमें पावर होनी चाहिए that it should go beyond the control of the parties and renders brings contractual performance impossible. So इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो भी परफॉर्मेंस थी वो इम्पॉसिबल हो गई है, ऐसी सिचुएशंस अब अराइज हो गई है. अब जैसे कि इसमें एक्ट ऑफ गॉड और गवर्नमेंट, तभी इसका जो पूरा ये जो टाइटल है वी कैन सी ऑफ गॉड्स एंड गवर्नमेंट्स, तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो या तो गॉड की तरफ से हो जिनको हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, लाइक नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, जैसे कि कोई फ्लड आ गई, फेमाइन आ गई, या फिर साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस तरीके का कुछ भी उसको एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, जिसमें अब ये तो अलग डिबेटेबल इशू है कि उसमें ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कितना रोल प्ले करते हैं, नहीं, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी कमिंग फ्रॉम, एंड इट इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम द नेचर, द गॉड. तो उन चीजों को और गवर्नमेंट्स के ऐसे स्टेप्स को जैसे कि लॉकडाउन, तो ऐसे चीजों को हम कंसिडर कर सकते हैं एज फोर्स मेजर, एंड नॉट एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी काउंटेड एज अ फोर्स मेजर. तो इन्होंने अब कहा है कि इट कंटेन्स एम्बिगुअस एंड कैच ऑल फ्रेजेस. तो अक्सर होता क्या है कि जब हम फोर्स मेजॉर का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें मेंशन कर रहे होते हैं, तो द लैंग्वेज इज समटाइम्स लाइक कि द something like an event of force majeure will be considered if this and similar other things happen. तो अक्सर क्या होता है कि एंड में एक आप, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली होगा फ्यूचर में, तो आप बस जो नॉर्मल प्रिडिक्शंस होती हैं, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होता है, उसके हिसाब से आप 2-3 उसमें इवेंट्स डाल देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप इवेंट डाल सकते हो कि जैसे कि अगर कोई अर्थक्वेक अराइज होता है, तो इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, तो इट इज डेफिनेटली काउंटेड अंडर फोर्स मेजॉर. तो आप अर्थक्वेक डाल सकते हो, या हो सकता है आप डाल सकते हो कि कोई भी फेमाइन आ गई है, कोई मतलब प्रोबेबल एक तरीके का है, तो आप डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद एक टर्म होता है जैसे आप उसको ऐड करते हो, एंड अदर थिंग्स. सो जो एंड अदर थिंग्स का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हो जाता है एट टाइम्स, और कैच ऑल फ्रेजेस मतलब फिर वो हम ऐसा समझते हैं अपने बेनिफिट के लिए. ऑब्वियसली जिस पार्टी जो अपना कॉम्प्लाई नहीं कर पाई अपने ऑब्लिगेशन को, तो वो चाहेगी कि उसका जो भी रीजन था वो भी इसके अंडर काउंट हो जाए और किसी भी तरीके से उसको रिलीफ इसमें मिल जाए. बट ऑथर ये कहते हैं कि ऐसी चीजों को, और ऐसा होता भी है, जो हमारे कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी इस रूल को अप्लाई करते हैं कि हमें जो ये मैक्सिम है एजेस्डम जेनेरिस, इसको अप्लाई करना चाहिए. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मैक्सिम ऑफ एजेस्डम जेनेरिस? इसका मतलब ये होता है कि जब हम 2-3 सिमिलर चीजों के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द गैलेक्सी, लाइक द स्टार्स, द सन which is itself a star, the star, the sun, the planets and other huge things. अब जो ये टर्म है other huge things, अगर हम उसको नॉर्मली अगर देखें तो other huge things में तो बहुत कुछ आ सकता है. एक ब्लू व्हेल भी आ सकती है, एलिफेंट भी आ सकता है, एक बहुत बड़ा सा घर भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली इट विल नॉट मेक एनी सेंस. ये कोई सेंस नहीं बनाएगा और जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस लगेगा. इसीलिए हम अप्लाई करते हैं मैक्सिमम ऑफ एजेस्डम जेनेरिस,
जिसका मतलब जब भी दो तीन सिमिलर चीजों के बाद कोई भी एक जनरल टर्म यूज होता है, एज इन जैसे कि एंड अदर थिंग्स, तो ये जो जनरल टर्म है उसका इंटरप्रिटेशन करते टाइम हम जो उसके पीछे दो तीन चीजें लगाई थी ना, उसी के लैंग्वेज में, उसी के कैटेगरी में उसमें नया कुछ एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि द स्टार्स, द मून, द सन, द प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में अब जैसे हमारी और सेलेस्टियल बॉडीज आ सकती हैं, और तरीके को कोई एस्टेरॉइड्स आ सकते हैं, मीटेरॉइड्स आ सकते हैं, मतलब समथिंग दैट इज associated with the things related to the things similar to the things that we have already quoted. तो उसमें अदर थिंग्स के नाम पे हम कुछ भी जो अदर बिग थिंग्स है वो नहीं डाल सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मैक्सिम ऑफ एजिज्म जेनरिस। तो इनका ये कहना है कि जब हम इस तरीके से अपना फोर्स मेजर का क्लॉज इंक्लूड करते हैं, तो उसमें जब अदर थिंग्स होती हैं, जिसको जो उस टाइम पे ऑब्वियसली आप जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, तो आपने ये क्लॉज डाल दिया, तो उसमें जब अब इंटरप्रिटेशन इसका होना चाहिए, तो अदर थिंग्स भी उसके सिमिलर चीजें ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी चीजों को आप फोर्स मेजर का नाम दे दीजिए। अब इन्होंने बोला है कि रेस्टिट्यूशन गोज हैंड इन हैंड विद द यूज ऑफ फोर्स मेजर, दैट इज सेलर सीकिंग टर्मिनेशन शुड रिटर्न पेमेंट रिसीव। अब ये सिंपल सी बात है ऑब्वियसली कि ये जो केस था नेहती जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस हाईलीराम जगन्नाथ, तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप फोर्स मेजर के टर्म को, फोर्स मेजर के क्लॉज को यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स मेजर का टर्म यूज किया और अपनी सारी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए, अब आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो थी वो नहीं है। दैट इज नॉट द केस। अगर कुछ भी ऐसा है तो आप रेस्टिट्यूशन करेंगे, मतलब अगर कुछ भी चीज थी जो आपने पेमेंट किसी की ली हुई थी और आप उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाए ड्यू टू फोर्स मेजर, तो आप उसकी पेमेंट भी रिटर्न करेंगे ना। दैट डजंट मीन कि भाई पेमेंट तो मैंने खर्च कर दी थी, लेकिन अब किसी सिचुएशन की वजह से, फोर्स मेजर की वजह से मैं प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया, तो मैं तो बिल्कुल फ्री हो गया। नो, दैट डेफिनेटली कैन नॉट हैपन, बिकॉज ये दूसरी पार्टी के लिए बिल्कुल वायलेटिव होगा उसके राइट्स का। तो अगर किसी सिचुएशन में आप फोर्स मेजर की वजह से अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं भी कर पाए हैं, तो रेस्टिट्यूशन करना होगा आपको उस सारी पेमेंट का जो भी आपने रिसीव करी थी उस प्रोडक्ट को, या जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज थी उसको प्रोवाइड करने के लिए। अब इन्होंने जो इलिस्ट्रेशंस दिए हैं ये बिल्कुल रियल लाइफ इलिस्ट्रेशंस हैं, और ये अभी रिसेंटली हुए भी हैं जब से ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि कई जगहों पे, कई मैटर्स में हमारे कोर्ट्स ने फोर्स मेजर के ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इस वाले केस में ही फोर्स मेजर को इन्फ्लिक्ट करते हुए या उसको एक्शन में लाते हुए बहुत सारी जो ऑब्लिगेशंस थी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, वो मतलब लोगों को, उनको पार्टीज को रिलीफ दे दिया। अब उसकी वजह से एग्जैक्टली जो मैजिस्ट्रेट जेनरिस की बात कर रहे थे कि ऐसे तो इंटरप्रेट किया नहीं, और लोगों ने उसको बिल्कुल ब्रॉड सेंस में एकदम इंक्लूसिवली जो है बहुत ज्यादा उसको वो कर लिया, इंटरप्रेट किया है। तो उस वजह से अब बहुत सारी चीजें या बहुत सारी कुछ हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले, जैसे कि जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स एक्चुअली वो कंपनीज होती हैं जो बेसिकली एनर्जी या फिर मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के, सो दीज आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेरियस सेक्टर्स में और वेरियस अदर प्लेसेस पे। तो अभी इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हम फोर्स मेजर को हम इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हम हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिक नहीं रही है, तो हम अपने ड्यूज जो है, हमारे टैक्सेस जो है वो हम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इट इज नॉट कंसिडर्ड एज फोर्स मेजर। व्हाई? बिकॉज कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ किसी चीज की डिमांड कम हो जाना, उसके प्रोडक्शन पे उसका, वैसे तो देखिए आप लॉन्ग रन में फर्क पड़ता है, लेकिन स्टिल जिस रीजन से वो डिमांड कम हो रही है उसको इमीडिएटली फोर्स मेजर नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए इसमें सिर्फ डिमांड कम हुई है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं हुआ, कोई ऐसे इवेंट नहीं हुआ कि इम्पॉसिबल हो गया हो प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिसिटी या कुछ, बिकॉज खर्चा तो इलेक्ट्रिसिटी का हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना ही बंद कर दिया, तो विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसको ट्रीट नहीं किया गया एज फोर्स मेजर। देन दूसरा है लीज एग्रीमेंट अलाउ वेवर्स ओनली व्हेन फोर्स मेजर कॉजेस फिजिकल डैमेज और रेंडर्स प्रॉपर्टी अनफिट। अभी रिसेंटली अगर आपने सुनने में आया होगा आपको कि बहुत सारे जो शॉप्स थी, तो वो अपना किराया जो है वो नहीं देना चाह रही थी, जो उनके जो ओनर्स थे उनको, या फिर बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशंस भी डाले थे कि क्योंकि भाई उनका इकोनॉमी बहुत वीक हो गई है एंड उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो अपना जो रेंटल हाउस है उसका रेंट भी नहीं दे पाएंगे। बट इट वॉज अगेन ट्रीटेड एज नॉट टू बी फोर्स मेजर, क्योंकि जो लीज के जो अग्रीमेंट्स होते हैं, बिकॉज सिर्फ फोर्स मेजर को भी हम ध्यान में नहीं रख सकते, जो जिस अग्रीमेंट में, जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में हम उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके भी प्री कंडीशंस जो है या उसके भी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी क्लॉजेस हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। तो लीज के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें फोर्स मेजर, उनमें मेंशन होता है कि फोर्स मेजर सिर्फ उस इवेंट को माना जाएगा, बिकॉज देखिए फोर्स मेजर आपके
टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन को आप फोर्स मेजोर मानेंगे। तो उसी सेंस में लीज एग्रीमेंट में फोर्स मेजोर हम उन सिचुएशंस को मानेंगे जब फिजिकल डैमेज हो, आपकी प्रॉपर्टी को, शॉप को, घर को, या कुछ भी ऐसी चीज हो जाए। तो तब जैसे अगर आपकी शॉप में आग लग गई, तो अब आप ऑब्वियसली उसका रेंट कैसे दे पाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास सारा जो लाइवलीहुड का तरीका था वो तो सारा चला गया। तो जब तक फिजिकल डैमेज नहीं होगा तब तक उसको फोर्स मेजोर नहीं माना जाएगा। एंड फर्दर दे आर सेइंग कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो जाते हैं कभी कभी जिनमें फोर्स मेजोर का क्लॉज मेंशन नहीं था। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फोर्स मेजोर अगर हो रही है और उस सिचुएशन में उनके पास ये क्लॉज नहीं था ऑलरेडी इन देयर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, तो वो वहां पे ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं ना। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि सिंपली कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी ऑलमोस्ट सिमिलर टू फोर्स मेजोर, जो एक सिचुएशन अराइज होगी जिसमें किसी भी सिचुएशन में उस चीज को कंडक्ट करना, उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना पॉसिबल है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पहले जैसे किसी की बुकिंग हो गई थी किसी शादी के वेन्यू के लिए, किसी मैरिज हॉल के लिए या इस तरीके कुछ के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया उस वजह से डेफिनेटली शादियां हो ही नहीं पाएंगी इतनी लार्ज गैदरिंग में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो अगर वहां पे ऐसी सिचुएशंस में फोर्स मेजर का क्लॉज नहीं भी था तो भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे कैन गेट इट टर्मिनेटेड। सो दिस इज सेक्शन 56 of the Indian Contract Act. So we can say that it is quite similar to the force majeure clause. तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि जो ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो एक तरीके से फोर्स मेजोर की क्लॉजेस की तरह ही काम करते हैं। Then this was all. This was held in the case of this one. It was held in the case of Satyabrat Ghosh versus Mugniram Bangur. So this is actually the contract in the Contract Act. Section 56 talks about the agreement to do impossible act, जिसको हम कह सकते हैं the grounds for frustration, or also in interpretation we can also call it as the grounds for force majeure clause. देन अभी इन्होंने ये एक आर्टिकल है रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स एंड कोऑपरेटिव्स। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली हमें पता चला है कि एक तो ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत इशू फेस करना पड़ा है अपने घर वापस लौटने में। अभी बहुत सारे तो पहुंच भी नहीं पाए हैं, और बहुत सारे पहुंचे हैं तो दे हैव ऑलरेडी लाइक सम हैव डाइड ऑन देयर वे बैक टू देयर होम्स, सम हैव आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, क्योंकि इतना ज्यादा जो है हैवॉक एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। सो अभी ये बोल रहे हैं, जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अब ये जो कुछ अपने घर लौट के वापस आ गए हैं, तो डेफिनेटली जो इनकी शहरों में जॉब थी वो ये छोड़कर ही आए हैं, क्योंकि छोड़कर भी आए हैं या कई जगह पे तो कह सकते हैं जॉब वैसे ही कोलैप्स हो गया है जो एम्प्लॉयमेंट है। तो इनका ये कहना है कि इस टाइम जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर आ चुके हैं तो बहुत सारे तो अगर उनके पास जॉब होगी भी, अपॉर्चुनिटी होगी भी, दे आर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड टू गो बैक, क्योंकि ऑब्वियसली जो लिविंग कंडीशंस है सिटीज में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऑल ऑफ अस नो दैट, क्योंकि वेजेस की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, जो हमारे वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है उसकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। मेनी टाइम्स जो लेबर लॉज होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली और पूरे फोर्स के साथ नहीं हो पाता है। तो अब क्या है, वो एक बार अपने घर अब जब आ गए हैं तो दे रियली डोंट वांट टू गो बैक। लेकिन ऐसे काम कैसे चलेगा? तो ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है कि वो घर में भी रह जाए एंड स्टिल दे कैन अर्न अ गुड लिविंग, एंड दैट टू विद अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया है कि वर्कर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, एंड विद टाइम दे कैन एक्सपैंड एंड डेवलप देयर ओन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विद बेटर सेलिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इन्होंने जैसे एग्जांपल इसमें दिया भी है, जो आर्टिकल है उन्होंने ये बोला है कि जैसे कि अगर कुछ ऐसे लोग थे, 5, 6 या 7 लोग थे जिन्होंने अपना जो टेलरिंग का काम करते थे, जो शहर में टेलर थे और अब उनको अपना जॉब छोड़ के यहाँ पे आना पड़ गया है, तो किसी एक जगह पे अब वो क्या कर सकते हैं कि वो एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, सभी टेलर्स मिलके एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, और उनको बहुत अच्छी जो टेलरिंग की प्रोजेक्ट्स हैं, अब चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी अक्सर उनको मिल सकते हैं, या फिर इस तरीके कोई भी जो बड़ी डील्स होती हैं वो उसको क्रैक कर सकते हैं, एंड एज अ कोऑपरेटिव दे कैन वर्क। अब कोऑपरेटिव की तरह काम करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिकॉज डेफिनेटली अगर सजेस्टिव है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो काम करें तो कुछ उसका बेनिफिट जरूर होगा और होना भी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि जब हम यूनियनेटेड होते हैं, एज इन यूनियनाइजेशन होता है, जब हम किसी भी तरीके के ट्रेड यूनियन, जैसे वो कह रहे हैं अगर कोई लेबर है तो वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, और फिर जब वो शहर में काम करने जाए तो अपनी पूरी यूनियन के साथ ही जाए। तो और जैसे बाकी अगर कोई प्रोफेशन है तो उसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। तो उनका एक मानना है, और विच इज द ट्रूथ एज वेल, कि जब आप यूनियन में होते हैं तो आप एक्सप्लॉयटेशन से भी बचते हैं, और आप अपनी डिमांड्स को, अपनी जो आपकी विशेज है या फिर जो आपके लिए बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए,
वो आप ज्यादा बेटर तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकते हो गवर्नमेंट के आगे भी और आपके एम्प्लॉयर के आगे भी। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई सिंगल पर्सन है और सब लोग इंडिविजुअली एम्प्लॉयड है किसी, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे सारे लेबरर्स जो हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड है, कोई कहीं से आके एम्प्लॉयड है, कोई कहीं से आके एम्प्लॉयड है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनको लगता है कि यार ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वेजेस कम दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं बिना पे किए, हॉलिडे नहीं दे रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ये जो भी उनको लगता है एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर एक इंडिविजुअल लेबरर उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करेगा तो इट इज वेरी इजी फॉर द एम्प्लॉयर टू जस्ट फायर द लेबरर। उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसकी जगह पे 10 और है और उसकी जगह फिलहाल लेने के लिए, तो वो उसको फायर बहुत इजीली कर सकता है। तो बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में कि आपकी जो प्लाइट है या आपकी जो डिमांड्स है उनको सीरियसली लिया जाए। बट इमेजिन जिन इंडस्ट्रीज में पूरे ट्रेड यूनियंस होते हैं, यानी कि जितने भी लेबरर्स होते हैं वो एक अम्ब्रेला के अंडर, एक ट्रेड यूनियन के अंडर काम करते हैं, तो वहां पे अगर एक को भी कोई ग्रीवेंस होता है तो सारी यूनियन स्ट्राइक पे आ जाती है, या फिर कम से कम जो लीडर होगा ट्रेड यूनियन का वो सबकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकता है। तो वहां पे उनकी डिमांड को पुट डाउन करना ईजी नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप एक्सप्लॉयटेशन से भी बच जाते हैं। तो दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड फॉर्मिंग द कोऑपरेशंस एंड यूनियंस फॉर द माइग्रेंट्स दैट आर रिटर्निंग होम। अब इन्होंने वही सेम बात बोली है कि दे कैन फॉर्म द मूव टू सिटी एज कोऑपरेटिव्स या यूनियंस विद डिमांड्स फॉर बेटर लिविंग। और जैसे अमूल का जो प्रोजेक्ट है उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इसको हम एज अ मॉडल लेके चल सकते हैं। और जैसे मनरेगा को उन्होंने कहा है कि इसे फिर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है, बिकॉज मनरेगा स्टिल इट इज एबल टू ऑफर ओनली 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन ईयर। बाकी टाइम आप वैसे भी आप नहीं फंक्शन कर पाते हो, अक्सर नहीं कर पाते हो, और कई जगह पे तो मनरेगा का बेनिफिट 100 दिन के लिए भी नहीं आपको परकुलेट कर पाता आप तक। तो ऐसी सिचुएशन में कोऑपरेटिव्स या यूनियन फॉर्म करने का तरीका बहुत हैंडी और एफिशिएंट हो सकता है। Now the next article talks about the MPLADS. तो MPLADS एक्चुअली क्या होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये 1993 में ये स्कीम हमारी जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी। तो इसका मेन आइडिया क्या था कि इस स्कीम के थ्रू हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इट इज इररिस्पेक्टिव वो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का है, सो ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनको पूरे एक साल के लिए 5 करोड़ पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो 5 करोड़ पर एमपी, एक अमाउंट जो मनी है वो गवर्नमेंट उनको अलॉट करेगी, तो वो उनके फंड में चला जाता है, विच इज कॉल्ड दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड। तो MPLADS का फंड होता है ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब एज द नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो ये है कि जो भी उन एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो वो जो उनका लोकल एरिया माना जाएगा, ऑब्वियसली वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो इलेक्ट होकर आए हैं पार्लियामेंट में, तो अपने लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए उनको ये 5 करोड़ रुपए साल के दिए जाते हैं। बिकॉज इट इज बेस्ट अंडरस्टूड कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सबसे बेस्ट नॉलेज होगी उसके बारे में। तो डेफिनेटली वहाँ की बेटरमेंट के लिए, वहाँ के जिसको कह सकते हैं बढ़ोतरी के लिए, वहाँ की अच्छाई के अच्छे ग्रोथ के लिए जो वहाँ के खुद के एमपी हैं वो सबसे अच्छा और सबसे जिसको कह सकते हैं हम इंटेलिजेंट एलोकेशन कर सकते हैं फंड्स का अलग अलग स्कीम्स के अंडर या अलग अलग एरियाज के अंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जगह है जहाँ पे वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, तो वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई दूसरा एरिया जहाँ पे फार्मर्स के लिए बहुत इशू है, फार्मर्स की स्कीम्स के लिए इशू, तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं एजुकेशन एक इशू है तो वहां पे वो इस तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। लेकिन अब हम ये आइडिया समझ चुके हैं कि MPLADS का एक्चुअली आइडिया है क्या। बट अब रिसेंटली क्या हुआ है कि क्योंकि इकोनॉमी बहुत नीचे आई है, बहुत इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पे, और उस टाइम पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट को बहुत एक अनफोरसीन जो सिचुएशन थी उसको फेस करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा गवर्नमेंट फंड से उसको निकालना पड़ रहा है इन दी फॉर मेंटेनिंग दी हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो। अब ऐसे टाइम पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो MPLADS है, ये जो फंड है, इसका अलॉटमेंट सस्पेंड कर दिया गया है फॉर 2020-21 एंड 21-22. So for the next 2 years, no MP will be allotted this amount of 5 crore each for the local area development. अब कई जगहों पे इसको कई लोगों ने इसको बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे सपोर्ट भी किया है, क्योंकि इससे बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास रह जाएगा और गवर्नमेंट कैन एलोकेट इट व्हेरेवर नीडेड। लेकिन इसका अगर हम दूसरा साइड भी देखें, लाइक इफ यू ट्राई टू सी टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन, व्हाट वी विल बी एबल टू सी इज that now the government is in a way taking the entire burden of allocating the funds and working in various schemes on itself. Government as in जो भी हमारे functionaries होंगे वो, and ऐसे टाइम पे 2 इम्पैक्ट होंगे इसके सबसे मेजर। सबसे पहला कि जो इस टाइम रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं
उनको अगर चलिए MPLADS नहीं भी मिलता है तो स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ फंड कमिंग फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट, और वो अपना एक फेवरेटिज्म तो डेवलप बहुत इजीली कर सकते हैं अपने एरिया में, और कहीं ना कहीं से पैसा जो है गवर्नमेंट से वो फेच कर लेंगे, और लोगों के वेलफेयर के लिए भी सही है, जैसा भी उनका फेवरेटिज्म एक्ट हो रहा है उसमें उसको इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा लगा देंगे। बट व्हाट अबाउट द ऑपोजिशन एमपीज? तो ऐसा तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सारे रूलिंग पार्टी के लिए के ही होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एमपीज फ्रॉम द ऑपोजिशन आल्सो, अ लॉट ऑफ फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो, जो ऑपोजिशन में एज एन लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, बट अदर जो पूरा ऑपोजिशन इन टोटलिटी उसके वो एमपीज है। अब इस टाइम पे जब उनके हाथ में गवर्नमेंट नहीं है, तो उन एमपीज के लिए तो सिर्फ एक ही कह सकते हैं, एक ही सोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग था उनकी फंड्स के लिए, जो था MPLADS, और वो अब गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो अब इन लोगों को अगर अपने जो एरिया के लोग हैं उनके लिए कुछ करना होगा, ये फंड्स कहाँ से लाएंगे? सो दैट एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये एक उनके लिए एक बहुत सेटबैक की सिचुएशन है, उनके लोगों के लिए, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनके लिए भी ये एक वरीसम सिचुएशन है। और इससे क्या होगा, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जो हमारे MPLADS होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 15% का जो अमाउंट होता है वो अलॉटेड होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, मतलब वो एक प्री फिक्स्ड अमाउंट रहता है, और 7.5% के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और इसमें से ऑलमोस्ट 20 लाख की जो अमाउंट होती है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए होती है। अब ये जो सेक्शन है, ये जो मार्जिनलाइज में थे हमारे सेक्शंस, ये ऑलरेडी इतना ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं ऑप्रेस्ड थे सोसाइटी में, और अब जब ये पैसा जो उनके लिए थोड़ा बहुत खर्च हो भी रहा था वो तक सस्पेंड हो गया है, तो वी कैन इमेजिन कि अब इनकी सिचुएशन क्या हो सकती है। So this is also saying suspension of MPLADS undermines prestige of MPs as compared to MLAs, क्योंकि जैसे MPs को ये जो अपना फंड मिलता है, इस तरीके से MLAs को भी फंड जो है वो दिया जाता है, और वो एक्चुअली में इस टाइम पे सस्पेंड नहीं किया गया है। So अगर इस टाइम के हम इन 2 सालों को ध्यान में देखें तो MPs का एक तरीके से स्टेटस जो है वो नीचे आ जाएगा फ्रॉम MLAs, जबकि हायरार्की में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर अबव द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू फॉर दैट मैटर। नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट रूरल इंडिया। अब इन्होंने बोला है कि अभी रिसेंट ट्रेंड्स में ये देखने को मिला है कि जो अर्बन इंडिया है, अर्बन जो हमारे सिटीज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनमें ही कोविड-19 का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा क्राउडेड है, एंड वी कैन सी दैट डिस्पाइट दे हैव बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे हैं एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो डेथ रेट है वो काफी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। एंड we should keep in mind that 65% of the Indian population is rural. तो अभी भी हमारी जो 65% जो population है वो rural areas में रहती है, और हमें ये मान के बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इस खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि जो कोविड-19 है वो सिर्फ अर्बन एरियाज को इम्पैक्ट करके चला जाएगा और रूरल एरियाज पे इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो ऑथर है वो कहते हैं कि ये डेफिनेटली रूरल इंडिया में भी आएगा, और ये भी पॉसिबल है, वी माइट बी अनफॉर्चुनेट इनफ कि वहां पे और ज्यादा इम्पैक्ट, जो और ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हमें वहां देखने को मिले, क्योंकि वहां पे जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा वीक है। तो जहाँ पे अच्छा था उनके मुकाबले वहां पे अगर ये सिचुएशन है, तो सोचिए रूरल एरियाज में तो ऑलरेडी बहुत हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वीक है, तो वहां पे क्या सिचुएशन प्रिवेल करेगी। और अभी क्या है कि लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज जब से हुआ है, थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं हम थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है जब से, तो तब से हमारा बहुत ज्यादा मूवमेंट भी देखने को मिला है फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज एंड वाइस वर्सा। और इसी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज और तरह के गुड्स भी हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से अब एक रूरल एरिया जो है वो भी कनेक्टेड ज्यादा हो जाएगा इन जहाँ पे जो भी कंटेनमेंट जोन्स हैं या फिर पैंडेमिक स्ट्रिकन जो अर्बन एरियाज हैं उनसे। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इट इज हाई टाइम कि हम अभी ही जो हमारे लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको एजुकेट करें अबाउट देयर प्रोटेक्शन ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। उनको बोले दैट हैंड सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू यूज मास्क, बिकॉज उनको अभी बहुत टाइम लगेगा पॉसिबली, क्योंकि एजुकेशन का लेवल भी रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली कम है, तो जिसको कह सकते हैं कि अवेयरनेस भी कम है। तो उस वजह से उनको कन्विंस हमें करना होगा, अभी से समझाना होगा दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेंटेन दी सैनिटेशन एंड हाइजीन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो मेन इसका आइडिया यही है कि हमें ऐसे में प्राइमरी हेल्थ केयर को सस्टेन करके चलना चाहिए और उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। जितना भी टाइम बचा है उसमें ही हमें ज्यादा ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके साथ साथ हमें जो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक एजुकेशन है उस पर भी इक्वली फोकस करना चाहिए।
Now this will be the last article for the day, which says language in courts. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, तो वहां पे उन्होंने उसको लिटिगेंट फ्रेंडली, मतलब लिटिगेंट फ्रेंडली एज इन कि जो भी लोग उसमें लिटिगेशन के लिए आए, जो भी लोग अपना केस लेके आए, उनको एक ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहां पे मिले, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो अब तक क्या था, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट है एंड आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसमें हमारा क्या था कि हमने दो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हमारे ऑल टुगेदर है इंडिया में, बट हमारी जो कोर्ट्स थी उनकी फंक्शनिंग के लिए हम इंग्लिश को ही यूज करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारा पूरा डेरिवेशन है हमारे लॉज का वो इंग्लिश में ही है। सो हमारा लीगल सिस्टम का फाउंडेशन ही इंग्लिश में हुआ था। तो आर्टिकल 348 भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी हाई कोर्ट्स की या फिर सुप्रीम कोर्ट्स की, सो दे वुड बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, तो जितने भी जजमेंट्स आएंगे, जो भी एक्ट्स आएगा, ऑर्डर्स आएंगे, रूल्स या रेगुलेशंस होंगे, वो भी इंग्लिश में ही होंगे। तो अभी क्या हुआ है, जो इन्होंने कहा है कि हरियाणा का जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है वो भी इंग्लिश में कंडक्ट होता है, और ये तक भी कि अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो हिंदी में पढ़ाना भी चाहते हैं, वो स्टिल एक कंपल्सरी मैंडेटरी टेस्ट होता है उसमें एडमिशन के लिए इंग्लिश का। तो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं रिगार्डिंग द लीगल एजुकेशन, वो प्रिस्क्राइब करता है इंग्लिश को एज द डिफॉल्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑल लॉ कोर्सेज, जो अभी हमने बात की। तो अभी तक हमने ये देखा कि सब ही जगहों पे इंग्लिश जो है एज ए लैंग्वेज प्रिवेल करती है, बट अब हिंदी जो है वो ला दी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में अमेंडमेंट करके हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी ट्रायल कोर्ट्स के लिए। और उन्होंने बोला है कि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी लॉयर्स और जजेस की फॉर री इक्विपिंग देमसेल्व्स, क्योंकि अब ऑब्वियसली उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी और उसके लिए अपने आप को कंफर्टेबल भी बनाना पड़ेगा नई लैंग्वेज के यूज के लिए। तो अब ऐसे टाइम पे ऑथर ने कहा है कि ये स्टेप देखने को तो बहुत जिसको हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट लगता है कि हम अपनी लैंग्वेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, बट अगर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी को देखें, मतलब इस टाइम पे एटलीस्ट हम देखें, तो वो कितना प्रैक्टिकल है ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले पंजाब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सेम स्टेप लिया था और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, एंड बट टिल द डेट वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल नहीं हुआ है। तो इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा डाइसी लगता है कि कितना इस पे इफेक्ट होगा या नहीं। और अभी रिसेंट जब जस्टिस BN श्री कृष्णा ने ये कहा था कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आप हिंदी को अपने लैंग्वेज बनाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रॉपर लिटिगेशन की लैंग्वेज बनाएं अपने कोर्ट्स में, तो कम से कम 2 जनरेशंस लॉयर्स की उनको प्रॉपरली उसी में कॉन्वर्स करना पड़ेगा, हिंदी में बात करनी पड़ेगी, हिंदी में सारी लिटिगेशन करनी पड़ेगी, तभी हम हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे। सो नाउ वी कैन इमेजिन कि कहाँ 6 मंथ्स का टाइम अभी प्रिस्क्राइब हुआ है ट्रेनिंग के लिए, और कहाँ जस्टिस BN श्री कृष्णा ने कहा था कि कम से कम 2 जनरेशन ऑफ लॉयर्स उनकी प्रैक्टिस लगेगी इसको वेल रिवर्स करने के लिए। तो इन्होंने अब कहा है कि क्या एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। उन्होंने कहा है कि दिस मूव इज रियली वेरी गुड, बट इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो अक्सर जो है जिसको कहते हैं फायर बैक कर देता है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रेजुअल क्रिएशन होना चाहिए एटमॉस्फेयर का, धीरे धीरे हमें लोगों को इंड्यूस करना चाहिए इस एटमॉस्फेयर में, एंड धीरे धीरे वी शुड कन्विंस देम टू मेक मोर ऑफ यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एंड तभी वो अडॉप्टिंग द लैंग्वेज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन देमसेल्व्स, तभी इसका जो बेनिफिट है वो होगा। Now, with this, we come to the conclusion of today's analysis, and this is the question for today. Which section of the Indian Contract Act provides for the termination of a contract due to force majeure? Or this can also be considered as which section of the Indian Contract Act provides for the termination of a contract due to frustration? So, more specifically, आप please इसको frustration consider करें. So, the options are Section 54, Section 55, Section 58, or Section 56. So with this, we conclude today's session of the news analysis. Thank you so much for staying tuned with us.